प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। हेलो, किछि शुभुनी शुभ नहीं? ना। हरे कृष्ण शुभुची? हाँ, हरे कृष्ण शुभुची, किंतु चुपचाप रहउछन्ती सब। नाଇଁ ନାଇଁ, चल स्टार्ट करिवी। हाँ हाँ, हाँ, जय श्री आज्ञा, राधे। गायधर जी से जय श्री निवेदन राधे। है वो अपना कार्यक्रम शुरू, उपक्रम शुरू करें। साउंड गायधर जी, क्लियर होता है क्या? वो मेरे साथ है इसी समस्या से। आप शुरू करें। जय चिंताहरण माँ। अच्छा, साउंड क्लियर हुआ है? साउंड हाँ हाँ, क्लियर 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 निवेदन है। हेलो। अच्छा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। My hearty congratulations to adorable saints, senior most bureaucrats, professors, lecturers, devotees who have assembled to savor the meal of Hari Bhakti in this sacred satra. Also, my respectful adoration to the self-effacing erudite scholars trio who have been preaching the Lord with all their devotional obeisance, surrender. Everything is going on well with the discussion and disquisition daily. सत्यांकितो किं कशिपु प्रयास ही बाहु स्वसिद्धि उपबर्हण किं सत्यांजलो किं पुरुधान्य पात्रा किं बड़कलादो सती किं दुकुड़े चिराणि किं पथि नसंति दिशंति भिक्षाम नैवां ग्रीपा पथव्रत पथिव्रत पथव्रतः सरितोप्य असुस्यान् रुद्धा गुहा किं अजितोप्य उपसन्नान् कस्मात् भवन्ति कवयो धन दुर्मदन्धान्. So this is the context. This is the spiritual ecosystem canvas around which our whole existence, life system should revolve and thereby evolve to the final beatitude. We are just listening to the liberation of Nalakuera and Manigriv. Devarsi Narada cursed them for their profligate behavior, but he has presented before us the propriety of his imprecation. Two things he has cited: one thing affluence, another poverty. Vyasadeva has sent a direct message to us all through the Naradji. What is that message? Affluence gives birth to many maladies that jeopardize the very purpose of our lives. Ego is popped up to the extreme dimension. Affluent people in general resort to illegitimate enjoyment
that ruins the brighter possibilities for evolution. On the contrary, poverty, deprivation, adversities, sorrows, miseries make the man introspective. People languishing in multifarious afflictions spontaneously harbor sympathetic attitude towards the people experiencing such plight. Here Vyasadeva's message is never fall a prey to arrogance, sexual perversion, unbridled permissiveness under the influence of wealth. Saint Murari Bapu once addressed his audience from Mehabaghat, Rajapur district of UP, the birthplace of illustrious wife of Sant Tulsidas, on the occasion of her birthday celebrations. What he said: sing, dance, make merry with much fanfare, but khana, panna, nachna, git gana should be in conformity with our decent Aryan tradition, customs in rightful, legitimate manner. Lord Nrsimhadev is condescended to bless Prahlad Maharaj with a life of such legitimate enjoyment, which is not in detriment to the spiritual elevation. Bhogena punyam, kusalena papam, kale barang kala javena hitva, kirting visuddham, suraloko gitam, bitaya mam eswasi muktabandha. Very marvelous, how gracefully it is stated, how mellifluous language is, how decently life is believed, life is to be lived, that has been pronounced in a laconic manner. Naraji reminisces his own life, own predicament in his earlier birth. He says, I was a Gandharva, Upavarana by name. I was a profligate, means sexually perverted. In a sacrificial festival, I was asked to sing the glory of the Lord. But under the influence of the sensuous women surrounding me, I sang erotic songs. Prajapatis caused me to take birth from a Sudra's womb. That we know what happened next. Nalakuvara, Manigriva have been liberated. They expresses their gratitude by singing hymns in praise of the Lord. The hymen is, O Lord Krishna, Nakhalu Gopika Nandana Bhavan, Akhila Dehina Mantra Atmadruk. You are not the Gopika's son. You are the inner essence of all embodied beings. You are the supreme being, primeval person, achintya, inconceivable, incomprehensible. The knower of Brahman, the knower of Brahman experience you as both instrumental and material cause of this universe. You are the Param Brahman, Akhilatman, Jasya Bhasa Sarvamidang Vibhati Sacharacharam. All this creation is manifested by the light of your effulgence. You are all pervasive. You are time, ruler of all, Sarva Bhutanam, Deha Swatmendriya Swaraha. You are one without a second. You constitute the body, pranas, ahankar, sense organs of all beings. Acharya Narottamji cited the verse from the Gita, Kalasmi Loka Khagru Prabhupada, etc., and from the hymen of Mother Devaki, Joyan Kalastashyate, Abhyakta Vidho, Te Chesta Mahu Chestate Jena Vishwam, Nimesadi Vatsaranto Mahiyasam Tesanam, Chemadhamang Prapaddi, meaning I take refuge in thee, who is the master of Prakriti and time both. At your command, time disturbs the equilibrium of the gunas, and thereupon the cosmic intelligence Mahat evolves, and in that train, other modifications take place in the creation process. You are aprakruto, so you are not within the grasp of the prakruta jivas, or inconceivable by the modification of prakrit, like mind, intellect, ego, sense, etc. Prakrute gunahitvam na drusyase, tot krupaya avdrusyase. So how can guna sambrutta jiva deluded by Trigunatmika Maya be able to know you, see you, the only seer of all in this universe? Like other hymens, this hymen is also abound with many intricate terms and expressions which are abstruse in nature and therefore unintelligible to us. An advanced teacher as you are, Pujya Acharya Narottamji, we hope from you to listen your discourses that will be very, very intelligible and understandable also. Now I request Acharya Narottam Prabhuji to start his discussion beginning from the verse Jasmai Tubhyang Bhagavate Vasudevaya Vedhase Atma Jyota Guneschanna Mahimne Brahmane Namaha Jasyavatara Gayante Sariresu Asarina Tair Atulyati Sahir Birjair Dehi Swasangatehi. So I request Pujyapat Narottam Prabhuji, Acharya Narottam Prabhuji, to please start his discourses on these verses and continue after on. So on.
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे। तो आज के संध्या कालीन इस श्रीमद् भागवत कथा सत्र में इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदन करता हूँ। जैसे हमारे अत्यंत हितैषी पंडा बाबू बता रहे थे, और कुबेर के दो पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव, उनकी भगवान के प्रति जो स्तुति थी, श्री दामोदर भगवान की जो स्तुति कर रहे थे, उसका हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री पंडा बाबू ने इसको जो 4 श्लोकों की स्तुति हम लोग श्रवण किए हुए हैं, उसका अर्थ एवं उसका जो सार आपने उसका प्रतिपादन बहुत अच्छे ढंग से किया। एवं इसी स्तुति को आगे हम श्रवण करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत में अन्य चरित्र, कथानक और अन्य दार्शनिक विषय तो हैं ही, उसमें स्तुतियों का माहात्म्य कुछ ज्यादा ही होता है। अर्थात जो भागवत दर्शन है, भक्ति सिद्धांत है एवं भक्तों का जो हृदय का आवेग है, वो स्तुतियों में दिखाई देता है। श्रीमद् भागवत में अनेक स्तुतियां हैं। ब्रह्मा जी की तो कई स्तुतियां हैं। देवकी मैया की भी स्तुति है, कुंती मैया की स्तुति है,
विष्णुदेव की स्तुति है, किसकी नहीं है, सबकी स्तुति है इस। तो अभी हम जिस स्तुति का पाठ कर रहे हैं तो वो नलकूबर एवं मणिग्रीव की स्तुति है। और स्तुतियों में अनेक साम्य भी रहता है, क्योंकि भगवान की जो विशेषताएं बताई जाती हैं, भगवान के गुणगान किए जाते हैं, तो भगवान के स्वरूप में, इन स्तुतियों में जो भगवान का स्वरूप पाया जाता है वो अनेक अनेक साम्य होता है। लेकिन तत्त भक्तों के हृदय के जो अलग अलग के आवेग होते हैं एवं सिद्धांत होते हैं, उससे वो फर्क भी है। दोनों बातें हैं, अतिशय तो साम्य है और उसमें अलगपन, उसमें पार्थक्य भी है। ये स्तुतियों का वैशिष्ट्य है। तो अब 4 श्लोकों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। उन श्लोकों को भगवान की स्तुति है इसलिए फिर से उच्चारण कर देते हैं, फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्रह्मणो विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजः सत्त्वतमो मयि त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवेत् गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोन्विहारति विज्ञातुम् प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। तो यहाँ तक के स्तुतियों का हम लोगों ने अर्थ को समझने की कोशिश की। तो अंतिम यह पद्य जो था, गृह्यमाणैस्त्वमग्राह्यः, अर्थात हे भगवान, आप समस्त प्राकृत गुणों को, मन बुद्धि इंद्रियादियों को आप प्रकाशित करते हैं। इसलिए प्राकृत जो वस्तु है, मनोबुद्धि इंद्रियादि, ये आपके द्वारा तो गृह्यमाण हैं, अर्थात आप इनको समझ जाते हैं, आप इनको, इनकी स्थिति को और इनका स्वरूप को आप भली भांति जानते हैं। लेकिन जिन इंद्रियों से इस जड़ जगत का दर्शन होता है या श्रवणादि होता है, वे इंद्रियां आपको ग्रहण नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो प्राकृत हैं और आप अप्राकृत हैं। इसलिए प्राकृत ही विकारे ही गुणे ही त्वम अग्राह्य। और दूसरी बात ये भी है, कोन्विहारति विज्ञातुम प्राक्सिद्धम गुणसंवृतः, अर्थात आप तो अनादिकाल से विद्यमान हैं और यह प्राकृत जगत, प्राकृत इंद्रियां, प्राकृत मनोबुद्धि चित्त अहंकार आदि, इनकी सृष्टि तो बाद में हुई। तो पहले विद्यमान जो तत्व हैं, जो आपका स्वरूप है, उसको वो कैसे जान सकते हैं? प्राक सिद्धम को नुहा अर्हति विज्ञातुम, पूर्व सिद्ध वस्तु को कोई भी कैसे जान सकता है? कहीं जानने का मौका मिले भी, लेकिन उसके बाद साथ दूसरी समस्या है, जानने वाला जब गुण के द्वारा समृद्ध है, गुण के द्वारा आच्छादित है, वो उसको कैसे जान सकता है? वेद स्तुति में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 87 87तम जो अध्याय है, उसमें भी यही बात कही गई है। कई हनुवेदवता बरजन्मलयोग्रसरम यत उदगादृशिर्यमनुदेवगणा उभये। कई हनुवेदवता बरजन्मलयोग्रसरम यत उदगादृशिर्यमनुदेवगणा उभये। क इह नु वेद बत अवर जन्मलय, अर्थात इस संसार में ऐसा कौन है जो अग्रसर, जो भगवान है, अग्रसर अर्थात जो पहले विद्यमान, अग्रे सरति तिष्ठति इति अग्रसरः, अर्थात पूर्व सिद्ध प्राक सिद्ध। इस श्लोक में जिसको प्राक सिद्ध कहा गया, वही तात्पर्य अग्रसर शब्द का है।
तो अग्रसर जो भगवान हैं उनको अवर जन्म लय, अर्थात जिस जीव का जन्म एवं लय अवर है, अवर है अर्थात परवर्ती काल में है, बाद में हुआ है। तो कई हनु वेद, ऐसा कौन जीव है जिसका जन्म, जिसका प्रकाश, जिसकी मृत्यु बाद में हो रही है। बारंबार जीव शरीर संयोग होता है, शरीर धारण करता है, शरीर को छोड़ता है। कई बार जीव ने इस शरीर को छोड़ा और उसका धारण किया, कई शरीरों में उसकी गति हुई। और ये सब कब हुई ना, अवर, अर्थात ये बाद में हुई, क्योंकि भगवान तो पूर्व सिद्ध हैं, नित्य सिद्ध हैं। इसलिए जो भी संसार में हुआ है वो सब बाद में ही हुआ है। इसीलिए अवर जन्म लय, जिस जीव का जन्म एवं लय अवर पश्चात संघटित हुआ हो, वह प्राक सिद्धम अग्रसरम कथम जानियात, कैसे जानेगा। क्योंकि जनाने वाले जो ऋषि महर्षि देवता, ये सब तो भगवान के बाद में ही आए हैं, भगवान के संकल्प से आए हैं, भगवान से ही इनकी सृष्टि हुई। तो जब जनाने वाले ही, अर्थात विज्ञापन करने वाले ही, समझाने वाले ही भगवान के बाद आए हैं, तो फिर उसके बाद जो समझने वाले हैं वो भगवान को भला कैसे समझेंगे। कई हनु वेदवता बरजन मलयोग्रसरम। तो इस तरह से भगवान का जो महात्म्य है, भगवान का जो नित्य सिद्धत्व है, एवं भगवान का जो दुर्विज्ञेयत्व है, भगवान दुर्ज्ञेय है, अर्थात दुर्ज्ञेय तत्व है भगवान। तो ऐसे भगवान की, ऐसे श्री दामोदर भगवान की, श्री नंदनंदन भगवान की, श्री यशोदानंदन भगवान की, श्री वसुदेवनंदन भगवान की स्तुति कुबेर नंदन श्री मणिग्रीव एवं दोनों भ्राता भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति, नलकुबर एवं मणिग्रीव, ये दोनों भ्राता भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्तुति कर रहे हैं। अगले पद्य में स्तुति में कह रहे हैं, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। अर्थात तस्मै तुभ्यं भगवते, अर्थात आप साक्षात भगवान है, क्योंकि कहा गया है एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात इन वाक्यों से या अन्य शास्त्रीय प्रमाणों से आपकी जो भगवत्ता सिद्ध है, आप साक्षात भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ऐसे भगवान को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, तस्मै तुभ्यं भगवते। और आप वासुदेव हैं, वासुदेव शब्द का अर्थ वसुदेव नंदन भी है और नंदनंदन भी है। कैसे है इसका विचार हम लोग करेंगे। वासुदेवाय अर्थात नंदनंदनाय या वसुदेव नंदनाय, और वेद से अर्थात इस जगत के आप ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करता है, संहार करता है, पालन करता भी है। और आत्मद्योतैर गुणैश्छन्न महिम्ने, ये पहले श्लोक का जो अभिप्राय था वही अभिप्राय इस श्लोक का भी है। कैसे, आत्मद्योतै ही गुणै, अर्थात हे भगवान, ये प्रकृति के जो गुण हैं सत्वरजतम, उन गुणों के द्वारा प्रकाशित या सृष्ट जो भी वस्तु है, या मनोबुद्धि अहंकार चित्त इंद्रियादि हैं, उनके द्वारा आपका महिमा, आपका जो महात्म्य है वो छन्न है। अर्थात आपके द्वारा ही प्रकाशित जो गुण है, त्रिगुणात्मक जगत है,
उसके द्वारा अर्थात त्रिगुणों के द्वारा, सत्व रज तमो गुणों के द्वारा आपका जो दिव्याति दिव्य महिमा, आपका जो असीमित महिमा, जो महत्व, वह छन्न है। इसलिए आत्मद्योते ही गुणे ही छन्न महिमने, आत्मद्योत गुणों के द्वारा छन्न अर्थात आच्छादित, आवृत है महिमा जिसका, वो है आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिमा, तस्मै आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिमने। ऐसे जो भगवान, ऐसे जो साक्षात ब्रह्मभूत अर्थात विभु, व्यापक, सर्वबृहत तत्व भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं आपको हम लोग प्रणाम करते हैं, हम दोनों प्रणाम करते हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। इस पद्य का भी अर्थ हम लोग श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से समझने की कोशिश करेंगे। अतो दुर्गेयत्वात् केवलम प्रणमतः, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान दुर्गेय हैं, क्योंकि इससे पहले श्लोक में ही यही कहा गया, कोन्नुहा हृति विज्ञातुम, कौन संसार में ऐसा जीव है आपको जानने के लिए समर्थ है। कोई भी आपको यथायथ रूप में नहीं जान सकता है, इसलिए आप दुर्विज्ञ हैं। इसलिए आपको जानने की बहुत कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रणाम निवेदन से ही आप प्रसन्न होते हैं, एवं जीव जो आपको बारंबार प्रणाम निवेदन करता है वो धन्य हो जाता है। आपकी कृपा को प्राप्त करके वह अपना जीवन को सार्थक बना लेता है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं अतो दुर्ज्ञेयत्वात्, क्योंकि आप दुर्ज्ञेय हैं, आपके बारे में हम कुछ जानते भी नहीं हैं। तो जब जानते नहीं है तो प्रकाश कैसे करेंगे, आपके स्वरूप का वर्णन और क्या कर सकते हैं। हम तो इतना जो किए यही काफी है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्धि इतनी नहीं है कि आपका जो असीमित महात्म्य है उन महात्म्यों का हम वर्णन कर सकें। अतो दुर्ज्ञेयत्वात् केवलम प्रणमतः तस्मै इति। वेधसे, वेधसे शब्द का अर्थ हुआ विश्वकर्त्रे, क्योंकि इस विश्व को भगवान दो तरह से करते हैं। एक तो प्रकृति के ऊपर निरीक्षण करने से प्रकृति में गुणक्षोभ होता है एवं महत अहंकार आदि की सृष्टि होती है, जो कि सूक्ष्म सृष्टि है, अर्थात जिसको सर्ग कहा गया। सर्ग है ये भगवान नारायण का काम है, और जो विसर्ग है वो ब्रह्मा जी का काम, अर्थात स्थूल पदार्थों की सृष्टि, जीव जगत की सृष्टि, ये ब्रह्मा जी का काम है। तो भगवान कभी विष्णु रूप में प्रकृति में गुणक्षोभ करके जगत की सृष्टि करते हैं, एवं ब्रह्मा के रूप में प्रकटित होकर के जीव जगत की सृष्टि करते हैं। इसलिए आप ही वेधा हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। विश्वकर्त्रे दुर्ज्ञेयत्वस्य कारणम, भगवान दुर्ज्ञेय हैं, क्यों, उसका कारण यहाँ इस पद्य में बताया जाता है। आत्मद्योते गुणैश्छन्ना महिम्ने कारणम गुणसमृत इति, अर्थात पहले श्लोक में भी कहा गया है प्राक सिद्धम गुणसमृतः। एक तो आप दुर्ज्ञेय हैं, आपकी महिमा अनंतानंत है, और दूसरी बात जीव जो है वो गुण समृद्ध है। ये दोनों में से अगर कोई एक समस्या होती तब कहीं कदाचित आपको कोई जान सकता है। एक तो समस्या है कि आपकी महिमा का कोई सीमा नहीं है, और दूसरी समस्या है जीव गुणों के द्वारा आवृत है, गुण समृद्ध है, सत्वरज तमो गुणों से वो फंसा हुआ है, तो वो आपको कैसे जान सकता है। तो इसीलिए गुण समृत इति समृतत्व उक्तम एव। पुनरपि स्पष्टयतः, अर्थात जो पहले श्लोक में
गृह्यमाणे गुणैस्तमग्राह्यो विकारैः गुणैः कोन्विहारति विज्ञातुम। इस श्लोक में जिस बात का उल्लेख है उसी बात को इस श्लोक में भी कहा गया है, आत्मद्योते गुणैश्छन्न। आपके द्वारा प्रकाशित जो गुण है उस गुण के द्वारा ही आप छन्न है। पुनरपि स्पष्टयतः आत्मना त्वयैव द्योतन्ते इति आत्मद्योत। अर्थात प्रकृति के ये जो गुण हैं, जिस गुण से यह प्रपंच बनाया हुआ है, ये भी भगवान के द्वारा ही द्योतित होता है। क्योंकि भगवान प्रकृति के ऊपर दृष्टि का निक्षेप करते हैं, उसका गुणक्षोभ होता है, महत अहंकार आदि की उत्पत्ति होती है। और वह जो प्रकृति है वो भी भगवान की शक्ति है। इसलिए भगवान से ही प्रकृति, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, अर्थात मैं ही उसका अध्यक्ष हूँ। अर्थात प्रकृति को कार्यकर बनाने में मेरी ही भूमिका है, मेरे संकल्प से ही इस जगत की सृष्टि होती है। तो आत्मना अर्थात त्वयैव द्योतन्ते इति आत्मद्योतैः गुणैः, ऐसे त्वत् प्रकाशैः गुणैः, अर्थात आपके द्वारा जिनको प्रकाश मिला हुआ है, आपके प्रकाश से प्रकाशित जो गुण हैं या आपसे प्रकाशित जो गुण हैं, उन गुणों से आपकी महिमा छन्न हो गई। कैसे? मेघैरिव रवेर यस्य, जैसे मेघ के द्वारा रवि छन्न हो जाता है, अर्थात सूर्यमंडल छुप जाता है, उसी तरह से क्योंकि मेघ जो है वो भी रवि का ही बनाया हुआ है। मेघ सूर्य के कारण ही बनाया है, क्योंकि सूर्य जल को संग्रह करते हैं गर्मी के समय में, तो वही जल धूम ज्योतिष सलिल मरुताम सन्निपातः क्वमेघः, तो इसमें सूर्य की सबसे बड़ी महिमा है, क्योंकि वे जल को सोख करके आकाश में ले लेते हैं। अर्थात सूर्य के द्वारा ही संघटित जो मेघ है वो सूर्य को आच्छादित कर देता है। इसलिए वर्षा काल में या जब मेघ आकाश में हो तो हम सूर्य भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो उसी तरह से भगवान के द्वारा सृष्ट जो गुण हैं, भगवान के द्वारा प्रकाशित जो गुण हैं, उन गुणों के द्वारा ही भगवान का आवरण हो जाता है, भगवान आवृत हो जाते हैं, भगवान को हम लोग नहीं पहचान सकते हैं। जीव और भगवान के बीच में माया का पर्दा है। इसी को श्री कुंती महारानी ने कहा, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। अर्थात माया जवनिका छन्न, केवल जैसे ड्रामा शुरू होने से पहले जो सामने दर्शक बैठे हुए होते हैं, वो जब तक वो सामने पर्दा पड़ा हुआ है तब तक उसके अंदर कौन कलाकार आता है, क्या करता है, वो प्रकटित नहीं होता है, वो दिखता नहीं। वो पर्दा को हटा दे, अर्थात जो किनारे बैठा रहता है हाथ में रस्सी लेकर के वो खींच लेता है पर्दे को, तो तुरंत उस मंडप में विद्यमान जो चरित्र हैं उनका दर्शन हो जाता है। तो उसी तरह से जीव के आवरण के रूप में भगवान और जीव के बीच में पड़ा हुआ जो माया जवनिका है, या गुण का जो आवरण है, प्रकृति का जो आवरण है, वो अगर हट जाए तो भगवान का दर्शन में विलंब नहीं होगा। उसी बात को कह रहे हैं, मेघैरिव रवे, मेघों के द्वारा रवि का जैसे आच्छादन हो जाता है, रवि का दर्शन नहीं हो पाता है मेघों के कारण, उसी तरह से आपकी माया के द्वारा ही आप आच्छन्न हो जाते हैं, आपको हम लोग दर्शन नहीं कर पाते हैं। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। देखिए, एक प्रश्न यहाँ मन में आना स्वाभाविक है। अर्थात हम आज तक श्रवण कर रहे थे, माया भगवान के सामने नहीं आती है, पीछे से रहती है और बहुत कमजोर है, लजाती है।
भगवान के सामने आने में। तो इतनी कमजोर जो माया है, क्योंकि भगवान की जो मुख्य मुख्य शक्तियां हैं, जो स्वरूप शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, ये सब भगवान की माया शक्ति से अत्यंत बलवती है। और दूसरी भगवान का जो भक्त कारुण्य है, भगवान की जो कृपा शक्ति है, भगवान के जितने भी ऐश्वर्य हैं वो बहुत बलवान प्रबल होते हैं। और माया शक्ति अत्यंत कमजोर शक्ति है, वो भगवान के सामने नहीं आती। तो ऐसी जो माया शक्ति है वो कैसे भगवान को आच्छादित कर देता है, आवृत कर देता है? उसमें क्या सामर्थ्य है? जैसे सूर्य मंडल कितना बड़ा है, त्रिलोकी को प्रकाशित करता है। भूर्भुव स्वर लोकों को, 3 लोकों को सूर्य जब उदित होते हैं वे प्रकाशित करते हैं। और मेघ कितना सा होता है? मेघ तो बहुत छोटा होता है, बहुत क्षुद्र होता है। और सूर्य के सामने मेघ का सामर्थ्य क्या है? तो वो कैसे सूर्य मंडल को आच्छादित कर देता है, यह संदेह होता है। लेकिन इसमें समझने की यही बात है, सूर्य मंडल को मेघ आच्छादित नहीं करता है, ना कर भी सकता है। क्योंकि सूर्य मंडल तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी के आकार से सूर्य कई गुना बड़ा है। तो उसमें मेघ का क्या हैसियत है, मेघ का क्या महात्म्य है कि वह सूर्य मंडल को आच्छादित करे? लेकिन फिर भी सूर्य मंडल आच्छादित हो जाते हैं, क्योंकि जो सूर्य मंडल का दर्शन करने वाला है उसी के नेत्र के सामने मेघ जब आ जाता है तो सूर्य मंडल का दर्शन नहीं होता है। कहने का मतलब यह हुआ, ये सही अर्थ में, असल अर्थ में मेघ सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं करता है। जो सूर्यमंडल का दर्शन करने वाला व्यक्ति है उसी के नेत्रों को आच्छादित करता है। वो कर सकता है, क्योंकि व्यक्ति का नेत्र कितना इतना छोटा सा होता है, उसकी दृष्टि कितनी सामर्थ्यवान होती है, बहुत कम होती है। तो उसको मेघखंड आच्छादित कर सकता है। तो उसी तरह से भगवान की जो त्रिगुणात्मिका माया शक्ति है वो भगवान को कभी भी आच्छादित नहीं कर सकती। लेकिन जीव जब भगवान को दर्शन करने का संकल्प करता है, दर्शन करने का जाता है, तो उसकी जो दृष्टि है उस दृष्टि को ही माया शक्ति आच्छादित कर देती है, जीव के सामर्थ्य को आच्छादित कर सकती है। क्योंकि माया भगवान की शक्ति है, अजीव भी भगवान की शक्ति है, लेकिन जीव अत्यंत अणु परिमाण है, अत्यंत क्षुद्र शक्तिमान, अत्यंत अत्यंत कमजोर शक्ति है जीव शक्ति। तो इसीलिए उसको माया शक्ति आच्छादित करती है। इसी को उपनिषद में कहा गया है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टे है स नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। अर्थात इस मंत्र का बहुत बड़ा तात्पर्य है, लेकिन हमको इतने से मतलब है, घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्नम अर्कम यथा मन्यते अति मूढ़ः। अर्थात जब व्यक्ति अबोध होता है, व्यक्ति की व्युत्पत्ति जब नहीं होती है, समझदारी बहुत ज्यादा जब नहीं होती है, वो यही सोचता है कि यह मेघमंडल सूर्य मंडल को आवृत कर रखा है। लेकिन असल में उसकी दृष्टि को ही मेघमंडल ने आवृत कर रखा है, लेकिन उसको ऐसा बोध हो रहा है कि सूर्य मंडल को आवृत कर रहा है। उसी तरह से भगवान की जो माया शक्ति है वह जीव के नेत्रों को या जीव की बुद्धि को आवृत कर देती है। इसलिए भगवान का दर्शन, भगवान का साक्षात्कार, भगवान का अनुभव नहीं होता है। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतैर्गुणैश्छन्ना महिम्ने ब्रह्मणे नमः। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोन् सभागेन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। यस्यावतारा ज्ञायन्ते
शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसङ्गतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंस भागेन सांप्रतं पतिराशिषाम्। इन दोनों जय सिया राम, श्लोकों को प्रणाम। हरे कृष्णा। पिछले श्लोक में थोड़ा हम कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। आत्मद्योत गुणैश्छन्न महिम्ने और आत्मद्योतैस् गुणैश्छन्न महिम्ने। गुणैस् द्योतैर्गुणै या द्योत गुणै दोनों संभव दोनों है दोनों क्या? दोनों सही है। दोनों जी सही है। जी 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 आत्मद्योत ही होगा, आत्मद्योत गुण ही, एक ही व्यापार, जी एक ही बात। जी 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 जी। प्रणाम। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णोऽंस भागेन सांप्रतं पतिराशिषाम्। अर्थात दोनों कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीव भगवान की स्तुति करते हैं, कहते हैं सांप्रतम अवतीर्ण, अर्थात हे भगवान, आप अपनी कृपा करुणा से जीवों के कल्याण के लिए, जीवों को आपका सानिध्य सुख देने के लिए आप सांप्रतम, इस समय आप नंदनंदन के रूप में इस ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं। सांप्रतम अवतीर्ण क्यों? न सर्वलोकस्य भवाय और विभवाय, अर्थात समस्त लोक को भव अर्थात उनके कल्याण के लिए, उनके भूति के लिए, और विभवाय अर्थात उनकी मुक्ति के लिए। भगवान जब प्रादुर्भूत होते हैं उस समय जो लोग भगवान के साथ, भगवान को निकटता से प्राप्त करते हैं, भगवान के सानिध्य में होते हैं, वे लोग तो बहुत ही उपकृत होते हैं। लेकिन जो लोग पास में नहीं भी होते हैं या उस काल में जब नहीं भी होते हैं, वे भी भगवान के अवतार से अत्यंत लाभान्वित होते हैं। देखिए भगवान का अभी अवतार कब हुआ था? काफी पहले हुआ था। कितने दिन, 5,000 से ज्यादा 5,000 से ज्यादा वर्ष का समय व्यतीत हो गया। लेकिन उस अवतार का जो लाभ है उसको अभी हम लोग बैठ करके ले सकते हैं। ऐसे हजारों लोग, हजारों भक्त शाम को सुबह बैठ करके भगवान की कथा का कीर्तन करके, भगवान के गुणों का श्रवण करके सभी लाभान्वित होते हैं। इसीलिए सांप्रतम अवतीर्ण, हे भगवान, आप अभी नंद ब्रज में अपनी कृपा करुणा से अवतीर्ण हुए हैं। स भवान तादृश भवान, आप उस तरह से हैं। और सर्वलोकस्य भवाय और सर्वलोकस्य विभवाय, लोगों को लोगों का कल्याण के लिए, अर्थात लोगों की जो भौतिक सुख, पारलौकिक सुख एवं आत्यंतिक सुख, क्योंकि भगवान जब होते हैं तो जीव जगत हर तरह से कृतार्थ होता है। इसलिए भवाय विभवाय च अवतीर्ण सांप्रतम। और अंश भागेन पतिराशिषाम, इसको व्याख्या कई तरह से कई लोग कर रहे हैं। जैसे अंश भागेन अर्थात बलराम भगवान के साथ, ऐसा अर्थ भी लोग करते हैं। लेकिन श्री चक्रवर्ती पाद इसकी कुछ दूसरे तरह से व्याख्या कर रहे हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है अंश भागेन आशीषाम पति, अर्थात आप जीवों के आशी के पति हैं। अर्थात जीवों की जो मनस्कामना है, जीवों की जो प्रार्थना है, जीवों की जो वांछाएं हैं, जीवों की जो इच्छाएं हैं, उनके आप पति हैं, अर्थात पूर्ण करने वाले हैं। कैसे? ना अंश भागे न, अंश भागे न का मतलब हुआ आपका जो अंश है उनके अंश के द्वारा। अर्थात कहने का मतलब है ब्रह्मा
रुद्र, नारद प्रभृति महर्षियों के माध्यम से आप जनता की वांछा को, जनता की कामना को पूर्ण करते हैं। क्यों? ऐसा कम अवसर आता है जब भगवान साक्षात किसी को वर देते हो। भगवान ब्रह्मा जी के माध्यम से, शंकर जी के माध्यम से, श्री देवर्षि नारद के माध्यम से और अन्य अन्य भक्तों के माध्यम से भगवान जनता की कामना को पूर्ण करते हैं, अर्थात भक्तों की मनोवांछा को पूर्ण करते हैं। इसी तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्ती बात कर रहे हैं। आशीषाम पति, आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। पति का अर्थात पूरयिता, प्रदाता। आशीषाम माने कामनाना, कामनाओं के आप पति हैं, कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। कैसे? अंश भागे न, अर्थात आपके जो अवतार हैं, उनके जो अवतार हैं, जैसे ब्रह्मा जी हैं तो भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकटित हैं, तो भगवान के अंश या भगवान के प्रकाश जो श्रीमन नारायण हैं, उनके अंश हैं ब्रह्मा, और उनके अंश हैं श्री रुद्र, क्योंकि महादेव जो हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अर्थात आप साक्षात जनता की मनस्कामना का पूर्ण न करने पर भी आप अपने अवतारों के माध्यम से या अवतार के माध्यम से, आपके अंश के माध्यम से आप जीवों की मनस्कामना का पूर्ति करते हैं। तो यह तो द्वितीय श्लोक हो गया। स भवान सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च सांप्रतम अवतीर्णः, समस्त लोगों के कल्याण के लिए, उनकी सर्वश्रेष्ठ कल्याण जो विभव यानी मुक्ति, उसके लिए आप इस समय अवतीर्ण हुए हैं। और कैसे? न आप आशीषाम पति, आप कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, साक्षात या अंश भागे न, अर्थात आपके अंश के जो अंश हैं ब्रह्म रुद्रादि, उनके माध्यम से। ये हो गया। स भवान, भवान तादृश, आप वैसे हैं। कैसे हैं? इसको पहले श्लोक में बताया जा रहा है। यस्यावतारा ज्ञायन्ते, अर्थात हे भगवान आप ऐसे हैं, आपके जो अवतार हैं, मत्स्य कच्छप वराह नृसिंह वामनादि के रूप में आपके जो अवतार हैं, वे ज्ञायन्ते, अर्थात वे समझ में आते हैं। जब भगवान मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह आदि के रूप में इस जगत में अवतीर्ण होते हैं जीवों के कल्याण के लिए, वे अवतार जाने जाते हैं, अर्थात जो लोग भक्त होते हैं वे पहचान जाते हैं, और जो अभक्त होते हैं वे भी कुछ न कुछ समझते हैं कि हाँ ये कुछ विशेष बात है। जो भक्त हैं या साधारण जो अभक्त नहीं है, अर्थात जो आपका विरोध ही नहीं है, चाहे वो आपका भक्त भले न हो, लेकिन आपसे अगर विरोध नहीं करता हो, वो अगर कंस रावण जैसा दुष्चरित्र वाला व्यक्ति ना हो, तो वो भी समझ जाता है इसमें कुछ वैशिष्ट्य है। यस्य अवतारः ज्ञायन्ते, आपके समस्त अवतार जाने जाते हैं। कैसे? आपका अवतार ना, आप हैं अशरीरी, अर्थात शरीर रहित, क्योंकि भगवान का प्राकृत शरीर नहीं होता है। इस बात को हम लोग बार बार कह रहे हैं। जब भगवान के बारे में कहा जाता है कि भगवान का रूप नहीं होता है, भगवान का गुण नहीं होता है, भगवान का शरीर नहीं होता है, इसका यही मतलब है कि प्राकृत रूप गुण शरीर भगवान का नहीं होता है। क्योंकि भगवान तो प्राकृत शरीर भगवान का कब हो? जब भगवान प्राकृत सृष्टि के बाद अगर आए हों तो भगवान का शरीर प्राकृत हो, लेकिन भगवान तो पूर्व सिद्ध है, बताया गया ना, प्राक सिद्ध। तो इसलिए जब प्रकृति में कोई महत्त्व अहंकार आदि का विकास नहीं हुआ था, उस समय से भगवान विराजमान हैं, और प्रकृति में महत्त्व आदि का विकास करने में भगवान की ही मुख्य भूमिका है। इसीलिए भगवान का प्राकृत शरीर नहीं होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय शरीर है, भगवान का शरीर चित्त है, सत्य है एवं आनंदमय है। तो इसीलिए आप अशरीरी हैं। तो अशरीरी न यस्य, अशरीरी जिस भगवान के आपके अवताराः ज्ञायन्ते, कुत्र ज्ञायन्ते?
न शरीरेषु, शरीरेषु का मतलब है मत्स्यादि जाति विशेषेषु, मत्स्यों में आप अवतीर्ण हो जाते हैं, सूकरों में अवतीर्ण हो जाते हैं, और कभी ऐसा भी अवतार होता है आपको पहचान में नहीं आता है क्या मनुष्य हैं या पशु हैं। तो इसी तरह से भगवान भगवान के कभी पक्षी के रूप में हंसावतार में अवतीर्ण हो जाते हैं। इत्थम नृतिरिजग ऋषिदेव झसावतारे, कभी नृ के रूप में, मनुष्य के रूप में, तिर्यक योनि में, झस का मतलब मत्स्य आदि के रूप में, इत्यादि विविध रूप में कर रहे विविध शरीरा, अर्थात भगवान विविध शरीर धारण करके भगवान के कल्याण करते हैं। तो शरीरेषु अर्थात मत्स्यादि जातिषु, मत्स्य कूर्मादि जाति में आप अवतीर्ण होकर के विराजमान होते हैं और आपके अवतार जाने जाते हैं। ये कैसे जाने जाते हैं? तैस्तै ही अतुल्यातिशय ही वीर्य ही, क्योंकि जब आपका वीर्य, क्योंकि आप जब नृसिंह अवतार में अवतीर्ण हुए, जो हिरण्यकशिपु त्रिभुवन को अपना दास बना करके रखा था, इंद्र चंद्रादि देवता जो अत्यंत दिव्य होते हैं, बलवान होते हैं, ऐश्वर्य संपन्न होते हैं, वे हिरण्यकशिपु के प्रभाव से छुप करके स्वर्ग को छोड़ करके भाग जाते थे। ऐसा था हिरण्यकशिपु का सामर्थ्य, लेकिन उसको आपने अनायास अपनी गोद में लेकर के उसको पेट फाड़ करके सबके देखते देखते उसको आपने ऐसा मारा जैसे कोई बहुत बड़ा विषधर सर्प किसी मेढक को पकड़ करके निगल लिया। इस तरह से आपने हिरण्यकशिपु का वध किया। तो ये जो आपका अतुल्य एवं अतिशय वीर्य है, अतुलनीय वीर्य और अत्यधिक जो वीर्य है, जो वीर्य देहिषु असंगत है, अर्थात प्राणियों में ऐसा सामर्थ्य नहीं देखा जाता है। प्राणियों में तो सबसे बड़ा सामर्थ्यवान था हिरण्यकशिपु, सबसे बड़ा सामर्थ्यवान था रावण, और बहुत बलवान था कंस। लेकिन आपका सामर्थ्य ऐसा है, इन दुष्टों का आपने अनायास ही वध कर दिया, इनकी मृत्यु का आप कारण बने। इसीलिए देहिषु असंगत, अर्थात जीवों में असंगत, अर्थात नहीं दिख जाने वाला जो सामर्थ्य है, नहीं दिखने वाला जो सामर्थ्य है, अप्राप्य जो सामर्थ्य है, अदृश्य जो सामर्थ्य है, अनुपलभ्यमान जो सामर्थ्य है, ऐसे वीर्य के द्वारा आप ज्ञायन्ते, आप जब अवतीर्ण होते हैं तो कोई कोई ऐसा कर्म करते हैं जिससे भक्त लोग एवं सामान्य लोग भी आपके अतुल्य एवं अतिशय वीर्य के द्वारा पहचान जाते हैं कि ये कोई जीव नहीं है, ये तो भगवान है या भगवान के अवतार है। तो 23 ही अतुल्यातिशय ही वीर्य, आपका अतुल्य एवं अतिशय जो वीर्य है, जो देहियों में असंगत है, अर्थात जीवों में या सामान्य जगत में जो सामर्थ्य, जो वीर्य नहीं पाया जाता है, उन वीर्यों के द्वारा आप ज्ञायन्ते, अर्थात आपके जो अवतार हैं वे समझ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते, अवतार कहाँ होते हैं? शरीरों में या शरीरी में, अर्थात मत्स्य कुर्मादि जातियों में। और आप कैसे हैं? अशरीरी। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णों सभागेन सांप्रतम पतिराशिषाम्। तो इन श्लोकों की श्री चक्रवर्तीपाद ने, हमने जैसे कहा उस तरह की व्याख्या श्री चक्रवर्तीपाद कर रहे हैं। अब उनका जो व्याख्यान है उसको पढ़ेंगे। सत्यम परमेश्वर एवं भूतो भवत्येव, अर्थात इससे पहले जो श्लोक था, तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे
अर्थात आप भगवान हैं, आप वासुदेव हैं, आप साक्षात सृष्टा हैं, और आपके गुण आपके जो महात्म्य हैं वो आपके गुणों के द्वारा छुपे हुए हैं। तो इसको सुन करके भगवान ऐसा कह सकते हैं, सत्यम परमेश्वर एवं भूतो भवत्येव। अर्थात हे नलकुबर एवं मणिग्रीव, आप जैसा दोनों वर्णन करते हैं, इससे लगता है कि आप भगवान की स्तुति करते हैं। मैं तो गोपाल बालक हूं, तो मेरी स्तुति भगवान के रूप में आप क्यों कर रहे हैं? सत्यम परमेश्वर एवं भूतो भवत्येव युवाम तो मामेव परमेश्वरम केन लक्ष्येण ब्रुवाथे। अर्थात आप हमको परमेश्वर मान करके क्यों स्तुति करते हैं? हमारे में कौन सा ऐसा लक्षण आपको दिखने लगा जो कि आप हमको परमेश्वर के रूप में स्तुति करते हैं? उसके उत्तर में ये दोनों श्लोक हैं। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहि स्वसंगतैः स भवान् जीवलोकस्य स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णों सभागेन सांप्रतम पतिराशिषाम। तो भगवान जब दोनों को ऐसा प्रश्न पूछते हैं, आप हमारी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो नंद बाबा का पुत्र हूं, मैं तो गोपाल बालक हूं, मेरे में क्या सामर्थ्य है? तो उस समय ये कहते हैं कि आपके अवतारा मत्स्यादय शरीरीषु मत्स्यादि जातिषु मध्य ज्ञायन्ते अनुमीयन्ते। अर्थात आपके जो कार्यकलाप हैं, आपके जो लीलाएं हैं, आपकी जो क्रियाएं हैं, उनको देखने से पता चल जाता है कि आप भगवान हैं। अशरीरिणः प्राकृत शरीर रहित तव केहि न देहिषु जीवेषु असंगते। देहियों में अर्थात जीवों में जो सामर्थ्य या जो क्रियाएं, जो लीलाएं नहीं देखी जाती है, वैसी लीलाओं के द्वारा देहिषु जीवेषु असंगते अघटमानैः वीर्यैः प्रभावैः। श्लोक में वीर्य शब्द का अर्थ है प्रभाव। स भवान अवतारी खलु एव भवति। अर्थात हे भगवान, आप केवल अवतार ही नहीं है, आप साक्षात अवतारी हैं। आपके अवतारों के सामर्थ्यम के द्वारा उनका ईश्वरत्व का बोध हो जाता है, और आप तो साक्षात समस्त अवतारों के मूलभूत हैं अर्थात अवतारी हैं। क्यों दोनों बता रहे हैं कि हम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप साक्षात अवतारी हैं? यद्यपि नारद महर्षि की कृपा से हमारी स्मृति अक्षुण्ण है, हमारी स्मृति अप्रतिहत है, फिर भी अभी आपने जैसी लीला करके हमको लीला का दर्शन कराया, उससे तो हम सहज ही अनुमान कर सकते हैं आप परब्रह्म परात्पर परमेश्वर भगवान ही साक्षात। क्यों? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में कह रहे हैं, हस्ति सहस्रेणापि दुरुत्पाटनयोः आवयोः अर्जुनयोः अर्जुन समौजसो। कहते हैं कि हम दो अर्जुन वृक्ष थे, अभी भी पड़े हुए हैं, हमारा शरीर के रूप में यह दोनों अर्जुन वृक्ष पड़ा हुआ है। इनका सामर्थ्य क्या है? अर्जुन समौजसो। अर्थात आपके मित्र जो पांडव अर्जुन हैं, उनका जो सामर्थ्य है, उस तरह के सामर्थ्यवान ये वृक्ष हैं। अर्थात अर्जुन जैसे अविचलित रहते हैं, अर्जुन जैसे स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, उसी तरह से हम दोनों अर्जुन वृक्ष के रूप में इतने दिनों से 36,000 वर्ष से हम यहाँ विद्यमान थे। और हस्ति सहस्रेणापि दुरुत्पाटन, 1,000 हस्ती से अगर इन वृक्षों को कोई उखाड़ने की कोशिश करता, वो विफल ही होता। अर्थात हस्ति सहस्रेणापि 1,000 हाथियों के द्वारा भी ये दोनों वृक्ष अर्जुन वृक्ष उखड़ने वाले नहीं थे, उन्मूलन होने वाले नहीं थे। हस्ति सहस्रेणापि दुरुत्पाटनयोः आवयोः अर्जुनयोः। और कैसे? अर्जुन समौजसो, हम दोनों अर्जुन सामर्थ्यवान हैं। फिर भी आपने क्या किया इसको?
बाल्य लीलोदित बल लवेनापि, अभी आप बच्चे हैं, वो भी असहाय हैं, उसमें भी आपको पेट से बांध दिया गया है उधर से, और उदुखल से आप बंधे हुए हैं, न आपने में चलने की क्षमता है, न आप में खड़े होने की क्षमता है, कोई भी क्षमता नहीं। लेकिन इतना बालक होने पर भी, इतना अक्षम होने पर भी, लेकिन आपने अपना बाल्यावस्था में इतना सामर्थ्य को प्रकाशित किया, छोटा सा सामर्थ्य को प्रकाशित किया, और इतना छोटा सा सामर्थ्य से आप हमारे जैसे इतने बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। इसका यह मतलब हुआ कि बाल्य लीलोदित बल लवेनापि उत्पाटनात्, बाल्य लीला में आप हंसी में, खुशी खुशी में हम दोनों को उखाड़ दिए। इसका मतलब यह हुआ रज्जुलु खलयो अपि तादृश शक्त्यर्पणात्, अर्थात आप में सामर्थ्य है ऐसा नहीं, केवल भगवान में सामर्थ्य हो और उस रज्जु में अगर सामर्थ्य न हो, या उल्लूखल में अगर सामर्थ्य न हो, और भगवान वो रज्जु से उल्लूखल को अगर खींचे तो रज्जु टूट जाएगी, उल्लूखल टूट जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, अपने अचिंत्य प्रभाव से आपने रज्जु में भी अपने सामर्थ्य को प्रदान किया और उल्लूखल में भी अपना सामर्थ्य को प्रदान किया। तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि आप समस्त अवतारों के मूलभूत साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं। रज्जुलु खलयोरपि तादृश शक्त्यर्पणात् इति भावः। तो श्लोक में जो भवाय है उसका अर्थ है भूत्यै, विगतो भवः यस्मात् तस्मै मोक्षाय अंश भागेन, अर्थात अंशांशेन ब्रह्म रुद्रादिना, जिस बात को हम अभी कह रहे थे, ये चक्रवर्ती पाद की बात हम कह रहे थे, अर्थात आप साक्षात जीवों के मनस्कामना पूर्ण न करने पर भी ब्रह्म रुद्र के रूप में तपस्वियों को, जो लोग आपसे वर प्राप्त करना चाहते हैं, तो ब्रह्मा होकर के या रुद्र होकर के आप उनकी मनस्कामना को पूर्ण करते हैं। अंश भागेन अंशांशेन ब्रह्म रुद्रादिना आशीषां सर्व कामनानां पतिर्दाता यः स एव इत्यर्थः। स भवान् सर्वलोकस्य भवाय विभवाय च अवतीर्णों सभागेन सांप्रतम पतिराशिषाम। तो इस तरह से कुबेर के दोनों पुत्र नलकुबर एवं मणिग्रीवा भगवान की स्तुति करते हैं, एवं आगे भी अभी स्तुति अच्छे छंदों से करेंगे। भगवान की कृपा से हम उनकी स्तुति को श्रवण कर पा रहे हैं एवं विविध व्याख्याकारों के व्याख्या के आधार पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप सबकी भूमिका, आप सबका उत्साह, आप सबकी उपस्थिति हमारी प्रेरणा का मूल है। इसलिए सभी के चरण कमलों में, समस्त संत जनों के चरण कमलों में, समस्त श्रोतृ वर्ग के चरण कमलों में बार बार प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे